My handwriting will be bad. Why? Because I'll be teaching faster, lot of things to cover. History taking and কি বলো general examination. Okay, so history taking means whenever, so now you are not just students, you are budding doctors, so you will have to assess when someone comes into a chamber or comes in forward of you, anyone in front of you, okay, for any medical assistant or any advice, you need to see him or her as a patient. Okay, so your perspective of someone coming in front of you will change, so and needs to change because you will be seeing him or her as a physician, a clinical physician, as a doctor. So history taking means knowing about the patient so that you can diagnose what is happening inside his body, his or her body, and so that you can take appropriate measurements or start needing medications. So history taking and general examination. Also there is another part after that, that is systemic examination. Okay, so history taking means general history taking, irrespective of anything you have to take history and general examination in all the patients. Then systemic examination, what do you mean by systemic examination? Examination means, this means actually specified system. Okay, so examination of specified system. Specified system means आपका GIT हो सकता है, मतलब digestive system, आपका respiratory system हो सकता है, आपका cardiovascular system हो सकता है, आपका CNS हो सकता है, आपका reproductive system हो सकता है, आपका vascular system हो सकता है, okay, आपका orthopedic problem हो सकता है, आपका muscular problems हो सकता है. So actually the many chapters you have in your physiology, okay, and also in anatomy you will be studying, so you will be studying various, this is called systems, like your gastrointestinal system, respiratory system, cardiovascular system. So these examinations will be specified in only the relevant area, but this is general examination. Okay, this is general examination and this is your general history, irrespective of if the person has प्रॉब्लम इन एनी ऑफ दिस एरियाज, और इवन ये सब नहीं भी हो सकता है, सिंपल डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, वेट लॉस, नॉर्मल वेट लॉस, एनीथिंग द पेशेंट कम्स एंड कंप्लेन्स विद, वेट गेन, एनीथिंग द पेशेंट कम्स एंड कंप्लेन्स विद, यू हैव टू डू दिस थिंग्स, absolutely mandatory, and then this thing you will be judging by this history taking and general examination. What will you do? You will go for systemic examination. Okay, giving importance on the systems you think are necessary for this person or relevant to this person, right? Like when abdominal pain, he is complaining of abdominal pain, after history taking and general examination, will you go for vascular checking? Will you go for orthopedic checkup? No. Which checkup you should go for? Obviously GIT. Very good. Jodi chest pain hoy, then you have to do history taking and general, then you have to go for cardiovascular. Respiratory तो chest pain होते पड़े, because respiratory and cardiovascular area are in the chest. So आपको respiratory system and CVS पे जाना होगा, फिर आपको differential diagnose करना होगा कि if the problem is due to cardiovascular problem or if the problem is due to आपका respiratory system problem. Similarly, so that's why they are systemic. They are not universally done in everyone. They are the এইগুলো তুমি জিজ্ঞেস করবে. You will also ask these things, but giving importance on this systems. That's why they are called systemic. এটা আমরা পরে পড়বো, because every system will need a general class of it. ठीक है? So उधर आप पढ़ोगे inspection, palpation, वो सब अलग है. For now we'll be completing this thing so that you have good understanding of your subject, and also you're studying anatomy, so आपका help हो जाएगी. Okay, whenever you will be moving on in different systems in anatomy, এখন বোধহয় কি চলছে, সুপেক্স চলছে, right? এখনো তোমার abdomen, chest ওগুলো ঢোকেনি. So once you enter these areas, accordingly we will be making you understand these areas. Like जो धरा आपका CVS चलेगा, सॉरी CNS चलेगा, हम आपको CNS का एग्जामिनेशन, मतलब वो एक साथ सिंक्रोनाइज करने का कोशिश करेंगे ताकि आपका सुविधा हो ये सब समझने में. ओके, बिकॉज इफ यू डोंट नो द स्ट्राक्चर्स वेल, हाउ विल यू गो फॉर सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, राइट? तो সেই জন্য আমরা ওই অনুযায়ী করব. ফর নাও লেটস টেক হিস্ট্রি টেকিং. হিস্ট্রি টেকিং এর পয়েন্টস নিশ্চয়ই সুভাষী স্যার খুব ভালো পড়িয়েছে, তাও আমাকে বলো. তো সেই জন্য তোমরা আমাকে বলবে, আমি তোমাদের হেল্প করব. আই উইল হেল্প ইউ আউট অ্যান্ড ইউ উইল টেল মি first, what is the first point? A patient comes in front of you are sitting here. So first point, what will you do? What will you ask?
No, first you will ask for the credentials so that that person is differentiated from another patient. Like এখানে ধরো অয়ন দাস, very common name, multiple person have this common name, right? Like হিন্দিতে তোমাদের রোহন, रोहन कुमार, this kind of names are very common. You can find even एक क्लास में 3-4 लोग भी मिल सकते हैं, लड़की लड़का ऐसा कुछ नाम पे. तो कॉमन नाम, वेरी कॉमन नेम हमारे इधर होते हैं. तो फर्स्ट यू हैव टू टॉक अबाउट क्रीडेंशियल्स so that the person is differentiated. এখানে তোমাদের নিশ্চয়ই বলেছে, বলো নেম, দেন এজ, দেন সেক্স, দেন religion. এগুলো whenever you have gone to see a doctor, you have, if you seen his prescription pad, his or her prescription pad, দেখবে এইগুলো একদম উপরে লেখা থাকে, তার নিচে দাগ দিয়ে ট্রিটমেন্ট আর ডায়াগনোসিসের জন্য জায়গা फिर उधर करा रहता है. तो नेम, एज, सेक्स, रिलीजियन, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन. So all of these things are necessary, नहीं तो दिक्कत हो सकता है. Specifically in some Hindu names, in some Muslim names, there are very common. Muhammad আসলাম, very common name, হ্যাঁ যা কারুর হতে পারে. তো কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবে? एज में भी डिफरेंट, एज अगर सेम हो गया तो एड्रेस डिफरेंट होगी, एड्रेस भी अगर आसपास आ गया तो ऑक्यूपेशन डिफरेंट होगी, और इतना कुछ सिमिलर हो गया तो दैट इज कोइंसिडेंस, दैट देन यू हैव टू रिमेंबर, ओके, व्हिच वन इज whom. सो या, सो इतना कुछ आपका क्रेडेंशियल्स है. एंड ऑल्सो नॉट फॉर ओनली आइडेंटिफिकेशन बट फॉर ऑल्सो द this is the identity of the patient. Why? Because when you will be sending for tests and all, যাতে নামগুলো একে অন্যের উপর গুলিয়ে না যায়, ওকে, দ্যাট পারসন, টেস্ট অফ দ্যাট পারসন ইন এ ল্যাব নিডস টু কাম ব্যাক ফর দ্যাট পারসন ओनली, যাতে একে অন্যের মাথায় না চেপে যায়. বুঝতে পেরেছো? এই जो लोग बंगाली नहीं समझते हो, मुझे थोड़ा थोड़ा याद दिलाते रहना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ओके, क्योंकि आई विल बी यूजिंग बंगाली वर्ड्स ऑफन बिकॉज दिस पेशेंट्स एक्चुअली हियर यू विल गेट मोस्टली which demographic patient, Bengali demographic patient. हिंदी आपको थोड़ा मिलेगा जब आप थोड़ा शहर में जाओगे, तब आपको मिल जाएगा. Now luckily most of the Bengalis grow up watching Bollywood movies, so they are fluent ना हो लो मोटा-मोटी जाऊंगा करूंगा खाऊंगा करके वो चला देगा, लेकिन ठीक है. लेकिन for now ओके, मुझे पूछना, क्योंकि आप लोग तो सब नए आए हो, बंगाली में उतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो मुझे पूछ लेना कि मीनिंग क्या है, ठीक है? तो आई विल बी समवट समटाइम आस्किंग अबाउट पेशेंट्स पर्सपेक्टिव, वो क्या कह रहा है, तो मुझे पूछ लेना सर दूसरे लैंग्वेज में बताइए. नेक्स्ट, सो इतना कुछ आप पूछ लिए, उसका क्रेडेंशियल हो गया. देन यू विल बी गो फॉर सेकंड किसे जाबे? वाइटल्स. vital signs. What are the vital signs? That signs denote कि you are alive. Any problem in these vital signs, if significantly decreased, the person will die. সেই জন্য এদেরকে বলছে vital signs. What are the vital signs? বলো. Good. 5 है आपका बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी उसका पहले आता है, लेकिन एक ही बात है, 5 लिखोगे तो हो जाएगा. फाइनली 1, वो आपको इतना दिन तक नहीं सिखाया गया, अब सीखोगे SpO2, दैट मीन्स सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सैचुरेशन. तो बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी ये ऊपर लिखते हैं. बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी, टेम्परेचर एंड SpO2, ठीक है. नेक्स्ट, वाइटल्स हो गया आपका, क्रीडेंशियल्स हो गया, वाइटल्स हो गया. देन यू विल गो फॉर द हिस्ट्री टेकिंग. तो आप नाम पता कर लिए, ये सब कर लिए. এই কেউ একজন, সবাই লিখছে এমন কেউ নেই যে লিখছে না? ওকে, তাহলে আমি এখানে ডাকতাম কাউকে. ও ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না. সো হিস্ট্রি টেকিং ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে, ले बोलो की फर्स्ट पॉइंट ছিল एनीवन हिस्ट्री टेकिंग का. उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री टेकिंग शुरू करोगे कैसे? ओके, सो व्हेनेवर ए पेशेंट कम्स टू यू, এই সব জিজ্ঞেস করার পর ডাক্তাররা প্রথম প্রশ্ন তোমাকে কি করে? হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন? বলো, এই তো বল. ভেরি গুড. কি হয়েছে? হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? ওটা কি আমরা কি বলবো? চিফ কমপ্লেন্ট. দ্যাট ইজ ইউর চিফ কমপ্লেন্ট অফ দ্য পেশেন্ট. কি বলো বাবা কি হয়েছে? ওকে, সো আমি ওকে জিজ্ঞেস করব, বলো কি হয়েছে. সো আই উইল বি আস্কিং ইউ. দেন আমি ওকে জিজ্ঞেস করব, ও আমাকে কিছু রিজন দেবে. ওকে, অ্যাবডোমিনাল পেন অ্যান্ড এনিথিং. আফটার দ্যাট আমাকে ডিটেলে যেতে হবে, ডিটেলিংয়ে যেতে হবে. লাইক, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি চলে যাও, অতটা লাগবে না. অ্যাকচুয়ালি এটা যখন আমরা হ্যান্ডস অন অ্যাপ্রোচে করবো, এই ভাইটালসগুলো মাপবো, অর দিস থিংস তোমরা নেক্সট দিন তোমরা একে অন্যের ওপরে পুরো হিস্ট্রিটা নেবে, ঠিক আছে? আজকে একা হলে সিঙ্গুলার হয়ে যাবে, ওই ভাইটালসগুলো মাপার দরকার নেই, সো বসার অতটাও দরকার নেই. চিফ কমপ্লেন্টস. সো চিফ কমপ্লেন্টস ক্যান বি অফ এনিথিং, ক্যান বি অ্যাবাউট एनी ऑर्गन, कैन बी अबाउट एनीथिंग. सर इचिंग होचे, नींद नहीं आ रही, वेट लॉस हो रही है, दिस इज सिंपल. एब्डोमिनल पेन, रेस्पिरेटरी पेन,
थोड़ा काम करते तो मुझे चक्कर आते हैं, कितना कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत कुछ कंप्लेन वो कर सकते हैं. सो you have to know in details about the complaint. So chief complaints only you will be noting. Then history of, so your chief complaint is his present illness, right? Presently ki hoyeche tomar, what is happening to you at present. So history of present illness, that means this point is detailing of this history. Okay, just if I heard just sir abdominal pain, I cannot understand anything. So history of present illness आपको इसको elaborate करना होगा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे? गुड, ये सब क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ नेसेसरी, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर. इफ देयर इज पेन एंड ऑल, सर वेयर. ओके, if there is specified problem, then you have to ask since when was the last time you didn't feel any of it, and when was the first time you started to feel in this episode. कोई शुरू कर सकता है सर 6 साल पहले, बोले नहीं वो मैं बाद में पूछूंगा. इस बार का एपिसोड, इस बार आप मेरे साथ क्यों आए हो, मेरे साथ सामने क्यों आए हो, कितने दिन से आपको ये दिक्कत हो रही है. सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी since when. देन सेकेंडरीली उसके बाद आपका आएगा एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, कि ये सब आपका हो रहा है लेकिन उसके साथ क्या और भी कुछ हो रहा है, लाइक एसोसिएटेड वॉमिटिंग, एसोसिएटेड ईचिंग, साथ में फीवर आ रहा है क्या नहीं, कुछ भी. ओके, देन एसोसिएटेड कंप्लेंट्स or only the abdominal pain, nothing else, associated complaints. Then you have to ask कि associated complaint के साथ उसके ask करना है कि इंटेंसिटी मीन्स सपोज किसी का फीवर आ गया है तो आपको बोल दिया वो कि फीवर तो जनरलाइज्ड होगा तो वायर का कोई मतलब नहीं है. सोचो फीवर है, सिंस व्हेन बोल दिया सर 4 दिन पहले से. एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नहीं सर, सिर्फ बुखार आता है, कभी कभी उल्टी आता है, बोल दिया. उल्टी माने वॉमी, ठीक है. बट नाउ यू हैव टू आस्क अबाउट द इंटेंसिटी. व्हाट डू मीन बाय इंटेंसिटी সিন্স ওয়েনটাকে আমরা ডিউরেশনও বলতে পারি ভালোভাবে. দিস ইজ ডিউরেশন. इंटेंसिटी मीन्स आपका कैसे आ रहा है, द टाइप, ओके, और द कैरेक्टरिस्टिक्स. इंटेंसिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपका जो बुखार आ रहा है, इज इट कंटिन्यूअस, ओके. इफ द एब्डोमिनल पेन और समथिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एनी कंप्लेन, इज इट कंटिन्यूअस, ओके. इज इट रिलीफ फ्रॉम मेडिकेशन जब ले रहे हो तब रिलीव हो रहा है. इज इट पीरियोडिक, लाइक पीरियोडिक फीवर कौन सा डिजीज में दिखाया जाता है, मैलेरिया. पीरियड प्रत्येक दिन एक निर्दिष्ट समय, एवरी डे एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो होता है. जिन लोगों का खाने के बाद पेट में दर्द होता है तो वो लोग कहेंगे कि व्हेनेवर आई ईट समथिंग, हाफ एन आवर लेटर और 15 मिनट्स लेटर द एब्डोमिनल पेन स्टार्ट्स. हो सकता है कभी गैस्ट्राइटिस के लिए, क्योंकि खाना जा रहा है, एसिड सिक्रेशन हो रहा है, सिंस ही इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस, उसको एब्डोमिनल पेन होगी. तो उसके वजह से आपको इंटेंसिटी सिंस व्हेन कि बहुत ज्यादा होता है या माइल्ड होता है, द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, ओके. एंड ऑल्सो द कमिंग बैक ऑफ इट, लाइक दवाई लेने के बाद कितना वक्त बाद आ रहा है, असर बिल्कुल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि তুমি খেলে তাও তোমার রিলিফ হলো না, হতেই পারে. ইন কেস অফ ফিভার, স্যার ফিভার ইজ নট সাবসাইডিং ইভেন আফটার টেকিং অ্যান্টিবায়োটিক্স মানে যেগুলো জ্বরের অপোজিট ড্রাগ, লাইক প্যারেসিয়া মানে জ্বর. तो या इंटेंसिटी, ये सब आपको पूछना है इन डिटेल कि कैसे आ रहा है एब्डोमिनल पेन, फीवर, व्हाटएवर, कि पीरियोडिक आ रहा है, पीरियोडिक आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसका गैप कितना, अगर पीरियोडिक नहीं भी आ रहा है तो गैप कितना है, सर 4-5 घंटा बाद आता है, ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाता है, 4-5 घंटा बाद आता है. कोई भी सिचुएशन हो सकता है. तो इफ यू डोंट आस्क योर क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, कुछ भी डिटेल्स मिस हो जाएगी, तो आपको डिटेल में डिटेलिंग करना है उसका. तो ये सब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आएगा. इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, टाइप, पीरियोडिसिटी, सिवियरिटी मतलब कितना पेन होता है, कितना पेन नहीं होता है. कोई बोलता है कि सर व्हेन आई एम सिटिंग नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बट व्हेन आई एम वॉकिंग दैट मीन्स ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन. टिपिकल कंडीशन seen in MI, myocardial infarction, that is not your respiratory problem. वो सब बात बाद में आपको इसी भी करोगे. क्या इन्वेस्टिगेशन इसको करने दोगे, that is dependent upon your all these things, right? So इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करने के लिए आपको ये सब सही से करना होगा. तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, देन हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस. इसके बाद आता है आपको पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था क्या नहीं, आपको देखना पड़ेगा. तो हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस मीन्स कि दैट पर्सन इफ ही वाज सफरिंग फ्रॉम द सेम इलनेस, नाउ रिमेंबर वो आप कहा था कि सर 6 साल पहले,
अब ये स्पेसिफाई करोगे कि ये डिजीज आपको, ये जो एब्डोमिनल पेन व्हाटएवर, ये इचिंग व्हाटएवर यू आर कंप्लेनिंग ऑफ, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, एनीथिंग हो सकता है. सो ये जो हो रहा है ये क्या, ये जिंदगी में आपको पहली बार हुआ है? इज इट हैपनिंग द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ? और पहले भी आपको, आप इससे जूझ चुके हो, आप दवाई ले चुके हो. तो इसको पहले, इसको आप कहेंगे हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस. हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस. सो इस पास्ट इलनेस इट इंक्लूड्स टू पार्ट्स. फर्स्ट, सिमिलर डिजीज हिस्ट्री, कि पिछले बार जब आप इस रोग से भुगते थे कौन सा दवाई लिए थे, उस बार का सही से रिजॉल्व हुआ था, कितना दिन पहले था, हाँ, हाउ मेनी डेज आफ्टर दैट यू आर गेटिंग, यू नो, इसको रिकरेंस कहते हैं, इट इज रीऑकरिंग, हाउ मेनी डेज लेटर. तो आपको समझ में आ जाएगी कि ओके दिस कंडीशन इज आइदर क्रॉनिक और एक्यूट. हो सकता है एक्यूट पेन मतलब इस बार बहुत ज्यादा हो गया है, क्रॉनिक मींस कंटिन्यूअस होता रहता है. सो आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि इफ दिस प्रॉब्लम इज एक्यूट फॉर दिस पर्सन और क्रॉनिक फॉर दिस पर्सन. यू विल आल्सो हैव एन आइडिया इफ दिस डिजीज इज ओल्ड और न्यू, नया शुरू हुआ है या पहले से सफर कर रहा है, राइट. सो हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस में पहले ये सेम डिजीज के बारे में आपको सवाल पूछना है कि कितना दवाई लिया था क्या नहीं, या ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो गया था, ये सब आपको पूछना है. तो सेम डिजीज एंड दूसरा इज अदर डिजीजेस. उसके बाद आपको पूछना है कि ये छोड़ के, ओके, बारिंग फ्रॉम दिस डिजीज व्हाट वर द अदर डिजीजेस यू वर सफरिंग फ्रॉम, और यू हैव सिग्निफिकेंट यू नो डिजीजेस व्हाट यू हैव सफर फ्रॉम इन द पास्ट. किसी का एस्मा था, रिजॉल्व हो गया. किसी का ट्यूबरकुलोसिस था, वो उसके लिए दवाई लिए है. किसी का पहले कोई सर्जरी हुआ था, कोई ओटी हुआ था, वो सब आप बाद में भी लिखोगे, लेकिन इधर पे भी आप नोट करोगे हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस में, राइट. पास्ट इलनेस में सेम डिजीज के बारे में एंड अदर सिग्निफिकेंट डिजीजेस के बारे में, राइट. सो नेक्स्ट, पहले कोई इंपॉर्टेंट डिजीज हुआ था क्या नहीं, ठीक है. तो ये आप हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस में आएगा. देन आपका नाउ यू आर एंटरिंग इनटू प्रॉपर हिस्ट्री. हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस के बाद, इलनेस के बारे में पूछ लियो हो तो आपको मेडिकेशन के बारे में पूछना पड़ेगा. दैट पॉइंट यू विल बी आस्किंग की पॉइंटर नाम बोले छे सर, बोलो मेडिसिनल हिस्ट्री और ड्रग हिस्ट्री. ओके, सो मेडिसिनल हिस्ट्री और ड्रग हिस्ट्री. ओके, मेडिसिनल हिस्ट्री. सो एंड ऑल्सो इसमें आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, कोई लोग ऐसे बोलते हैं ड्रग एंड एलर्जिक हिस्ट्री, ऐसा टर्म भी आपको मिल जाएगा. दैट मीन्स सम इन सम पेशेंट्स सम फूड, स्पेसिफिक फूड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्पेसिफिक एलर्जीज. कई लोगों को वैसे क्रैब्स, तारपरे होचे कुछ अंडे या मिल्क, ये सब में कुछ एलर्जीज हो सकता है. मल्टीपल, एक कुछ भी हो सकता है. तो कोई किसी दवाई से एलर्जी हो सकता है, कि किसी डिजीज, किसी एक एंटीबायोटिक पे या किसी एक दवाई पे, किसी एक स्पेसिफिक डोज पे उसको एलर्जी हुआ था, तो उसका डोसेस चेंज हो गया था. तो इसके बारे में आपको पूछना पड़ेगा, एलर्जी के बारे में. एंड मेडिसिनल हिस्ट्री, जस्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट कोमॉर्बिडिटीज. व्हाट डू यू मीन बाय कोमॉर्बिडिटीज? कोमॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मतलब मौत, ठीक है. ओके, थिंग्स व्हिच विल मेक यू डेड. एंड कोमॉर्बिडिटी मतलब दे डोंट डायरेक्टली किल यू, दे विल हेल्प others to kill you, like diabetes. diabetes से डायरेक्टली आप नहीं मरोगे. कैसे मरोगे? डायबिटीज के वजह से जो आपका इन्फेक्शन हो जाएगी उसके वजह से मरोगे. एजमा नॉट डायरेक्ट, डजंट डायरेक्टली किल यू, बट वो जो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे कंटिन्यूअसली हो रहा है, अनट्रीटेड रह रहा है, उसके वजह से मरोगे. तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दीज आर एक्चुअली योर कोमॉर्बिडिटीज. सो यू हैव टू आस्क फॉर एनी प्रेजेंट कोमॉर्बिडिटीज. कोमॉर्बिड, ये आप मेडिकल स्टूडेंट हो इसलिए आपका कोमॉर्बिड बोलना. आपको उधर बोलना है कि कोई कंटिन्यूअस डिजीज है जिससे आप जूझ रहे हैं, जिसके लिए दवाई ले रहे हैं. सो एनी प्रेजेंट कोमॉर्बिडिटीज लाइक एस्मा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ऐसे करके उसके लिए कंटिन्यू डिजीज किसी के ले रहे हैं, उसका भी आपको हिस्ट्री एक साथ ले लेना है. अच्छा, डायबिटीज के लिए सर दवाई लेता हूँ, कितना दिन से, कौन दिया था, डिजीज का नाम बताइए, ये सब नोट करना है. सर हाइपरटेंशन के लिए लेता हूँ, कितना दिन से, कौन दिया था, खुद से ले रहे हो या डॉक्टर दिया था. ओके, डॉक्टर दिया था, तो डोज बताइए, क्या खा रहे हो. एंड ऑल्सो आपको ये भी पूछना पड़ेगा हालत कैसा है, कि अच्छा वो जो आप दवाई खा रहे हो तो उसका लिए आपका, उसके बाद आपका डायबिटीज या आपका हाइपरटेंसिव लेवल आप चेक करवाते हो, रेगुलर चेक करवाते हो, लास्ट ब्लड रिपोर्ट का रिजल्ट कैसा था. मतलब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में जो जो आप पूछे हो यही आपको एक जनरलाइज पूछना होगा. कि और भी कोई लोग थायराइड का दवाई कंटिन्यूअस लेते हैं, तो थायराइड का दवाई आप लेते हो, थायराइड का टेस्ट कब करवाए, लास्ट टेस्ट कब था, वो नॉर्मल था. तो ये सब, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो असेसिंग कि इफ these conditions may also may be the cause of this current problem. If they are not treated well, if they are not managed well, they can also contribute to these problems. So as a
you are not just a doctor, you will be treating him or her. So to treat him or her, you have to eliminate every problem in your way. So এগুলোও problem হতে পারে. So you have to ask, okay, whenever a person is having hypertension and diabetes or things like that, you have to treat him with care because already he is having something. কারো dialysis चले, a lot of person have dialysis, continuous dialysis, elderly person, उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कि dialysis कितना interval पे होता है. dialysis क्या ना हो kidney disease এর কারণে, ওগুলো তোমরা পরে পড়বে. acute kidney injury, AKI and chronic kidney disease, that means CKD. CKD তে আমাদের dialysis দরকার, সব পরে তোমরা পড়বে. But in that case, all of this, any present comorbidities and also simply any past. किसी को हो सकता है कि प्रेजेंट नहीं है, पहले हुआ था, लाइक ट्यूबरकुलोसिस टीबी हुआ था किसी को, वो 1.5 साल या 9 महीना, एक HRZD रेजिमेन बोल के होता है, आइसोनियाजाइड, ओके, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटॉल, ये सब का एक HRZD बोल के रेजिमेन होता है. तो वो रेजिमेन वो पहले हो सकता है 9 महीने के लिए लिया था, पहले कुछ हुआ था, ओके, तो उसके लिए कोई दवाई पहले लिया था क्या नहीं, कंटिन्यूअस बेसिस पे. सो एनी पास्ट मेडिसिन हिस्ट्री ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मेडिसिन, किसी को एस्मा था, अभी रिजॉल्व हो गया है, लेकिन पहले जब एस्मा था कितना दिन तक था, कितना साल तक था, वो उसके लिए कोई दवाई लिया था या ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो गया था, पूरा आपको पूछना है. सो एनी पास्ट मेडिसिनल हिस्ट्री. सो फर्स्ट, any present comorbidities, any past medicinal history, and also currently ये जो आप ये जो disease लेके आए हो, not necessarily he has come on the first or third or fifth day within 1 week. कई लोग होते हैं 2 हफ्ता 3 हफ्ता देखने के बाद आते हैं, कई लोग होते हैं लोकल में आपको वो दिखाए है, उसके साथ दवाई लिए है, but since it is not performing well, वो फिर आपके पास आया है. हो सकता है कोई 2 महीने 2.5 महीने बाद में आएगा, तो आपको फिर उस मेडिकेशन में फिर लास्ट 2 महीने का दवाई भी तो घुस जाएगा. तो वो करेंटली ये जो एब्डोमिनल पेन है 7 दिन से वो शायद पेन किलर ले रहे हैं, तो वो भी आपको नोट करना है कि ओके, सो व्हाट आर द मेडिसिन्स यू आर टेकिंग करेंटली, व्हाट वर द मेडिसिन्स यू हैव टेकन इन द पास्ट, एंड फॉर under which prescription, under whose authority, and also the doses, and also after taking the medication the result of the medication, result नहीं उसको effectiveness कहेंगे, and the effectiveness of the medication, ये सब आपको medicinal history में note करना है. So that ये this history is not only a general Q&A, मतलब question and answer, this is not a general questionnaire, it's your diary about the patient, it's your case history. ওকে, whenever তোমরা মেডিসিনে যখন মেডিসিন সার্জারি ENT তে যখন যাবে, देखবে बड़ो बड़ो PGT दादा আছে, उनको PGT कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी. वो PGT लोग क्या करेंगे, देखोगे यार बड़ा बड़ा सीट लेके एकदम सुंदर करके लिखेंगे. नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंटिन्यूएशन सीट होता है, ब्लैंक सीट, इधर आप शायद इधर पे आपका प्रिंटिंग भी मिल जाएगी, राइट. सो एनी पास्ट मेडिसिनल हिस्ट्री ऐसे करके आपको पूछना है. तो मेडिसिन के बारे में पूछ लिए, तो सर्जरी भी क्यों निकल बात जाए, सर्जरी ऐड हो जाएगा. तो सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट कोई सर्जरी हुआ है क्या नहीं, एनी काइंड ऑफ सर्जरी हो सकता है, कोई प्लेट बैठा था, दैट कैन कंट्रीब्यूट टू प्रेजेंट इन्फेक्शन, दैट कैन कंट्रीब्यूट टू প্রেজেন্ট ডিফর্মিটি. ওকে, এনি পাস্ট প্লেট বসে, কোনো পাস্টে কোনো সিগনিফিকেন্ট সার্জারি, কারোর পেসমেকার বসে আছে, কারোর হার্ট বাইপাস সার্জারি হয়েছিল, নট নেসেসারিলি হি অর শি নিড টু হ্যাভ এনি ফরেন বডিজ ইনসাইড their body, but also past surgical history, so you know, okay, so this is a risk factor for this patient, right. So that's why past surgical history. कई महिलाएं हैं जो C section को सर्जरी नहीं समझते, वो समझते हैं that's a normal, but C section is surgery, right, cesarean surgery. तो सीजरियन CS के बारे में, महिलाओं के बारे में आपको हिस्ट्री लेना है. सो लड़कियों के बारे में आपको अलग से कुछ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है, वो मैं बाद में बताऊंगा, तब मैं डिटेलिंग करूंगा. लेकिन लड़की होगे तो उसके लिए सर्जिकल हिस्ट्री में C सेक्शन का भी बारे में पूछ लेना. सो एनी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, एनी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री इफ यू कैन रिमेंबर, नॉट नेसेसरीली दे विल बी able to provide your documents because they cannot, ও তো সব বাড়িতে রেখে এসছে, ও তো শুধু তোমাকে দেখাতে এসছে. But by asking, you ask in the next visit bring the documents if possible. ओके, आपको एक ध्यान में रहेगा कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था. ओके, पहले कोई कान का ऑपरेशन हुआ था, कुछ निकाल, कोई किसी का अपेंडिसाइटिस हुआ था, किसी का गॉल स्टोन रिमूवल हुआ था, या गॉल ब्लैडर रिमूवल हुआ था, किसी का हिस्टेरेक्टोमी हुआ है, कुछ भी आपको एनी सर्जिकल हिस्ट्री आपको इधर पे नोट करना है. ओके, सो इसके बाद आपका आएगा मेडिसिन हिस्ट्री हो गया, सर्जिकल हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका आएगा, बोलो, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री. What do you mean by socio-economic history? That means you have getting the idea of how was the patient, how much the patient is capable of treatment, and also how is his general locality or general hygiene.
कई लोग जो ऐसा टाइप का घर में रहते, हम लोग जैसे ऐसा टाइप का घर में रहते, हम लोगों का आसपास का इन्फ्लुएंजा का चांस बहुत कम है। लेकिन जो लोग रहते हैं रेल स्टेशन के पास, आपका तो पूरा डेमोग्राफिक से ही पेशेंट आएगा, नॉट नेसेसरीली लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या अपर क्लास आएगा, एकदम पुअर, हाँ, पॉवर्टी क्लास से भी आपको काफी लोग आएंगे जिसका रहने का जगह इज नॉट सुटेबल। ओके, ऑफन दोज डिजीजेस आर रैम्पेंट इन दोज एरियाज। लाइक जो ड्रेन के पास रहता है, एक छोटा छोटा बस्ती में क्लॉस्ट्रोफोबिक एरिया में रहते हैं, उनको मलेरिया, डेंगू ये सब के चांस काफी ज्यादा होंगे, एंड इन्फेक्शंस आर वेरी रैम्पेंट अमंग देम बिकॉज हाइजीन অতটা मेंटेन হয় না in those houses, even if you try, not possible to maintain hygiene, right? Plus they are all daily workers and all, बहुत जगह पे वो लोग एक्सपोज होते हैं। Some people stay in industrial areas where sounds, they always hear high pitch sounds, they have tendency to develop ear problem, right? Hearing problems. So ऐसे करके आपको जो हिस्ट्री लेना है, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आपका आएगा हाउस, इफ द हाउस इज कच्चा और पक्का। कच्चा मीन्स मेड ऑफ मिट्टी एंड ऑल द थिंग्स, एंड पक्का हाउस मीन्स मेड ऑफ ब्रिक लाइक दिस। सो होम हो गया। इसके बाद आपका आएगा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बारे में आपको डिटेलिंग करना है। ओके, कोई कुछ फैक्ट्री में काम करता है, ओके, एस्बेस्टस फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, उनका सिलिकोसिस वो सब होने का, सिलिका फैक्ट्री वो सब होने का चांस ज्यादा है। वर्क एनवायरनमेंट, होम एंड, सो दिस इज एक्चुअली हिज एनवायरनमेंट एंड हिज कैपेबिलिटी और द क्वालिटी ऑफ हिज डेली लाइफ। होम हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, फिर आपको डिटेलिंग लेना है किसके बारे में, बोलो, आर्की, सोशियो इकोनॉमिक आर्की असबे, इनकम, डेली इनकम, इफ द पर्सन एवरेज इनकम उसको पूछना है, क्योंकि यू हैव टू असेस आल्सो कि इफ द पर्सन्स इनकम इज enough to maintain their daily nutritional need। অনেকের আছে डेली वेजे কাজ করে দিনে 300 টাকা, দিনে 400 টাকা, उसमें से क्या ही हो जाएगा, घर में 4 लोग हैं, तो मोस्ट प्रोबब्ली दे आर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट, दैट इज आल्सो very much a contributing factor for any infection, any diseases, already their immunity is weak, right? So ये सब आपका काम में आएगा। तो इनकम, ऑक्यूपेशन, होम कंडीशन एंड ऑल्सो सैनिटरी कंडीशन, वो आपका हेल्थ एंड हाइजीन में आप भी पुट कर सकते हो। सैनिटरी कंडीशन, कई लोग होते हैं कई लोग होते हैं जिसका घर से बाथरूम अलग होता है, देखोगे चल के जाते हैं वो लोग, दोस पीपल हैव ओपन बाथरूम, सो उसके लिए इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट? होने का चांस, डेवलप करने का चांस। तो सैनिटरी कंडीशन भी आपको पूछना है। दैट इज योर सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री अबाउट हिज सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिकल स्टेटस विल गिव यू एन आइडिया अबाउट देयर डेली लाइफ and the capability of those patients and also the chance of those patients to suffer from specific diseases। उसके बाद आपका आएगा फूड एंड एलर्जी हिस्ट्री। तो फूड एंड एलर्जी में आप एलर्जी पुट कर सकते हो, मेडिसिन एंड एलर्जी में भी पुट कर सकते हो। सो फूड एंड एलर्जिक हिस्ट्री, फूड हैबिट, इसको कई कई बुक में दूसरा पॉइंट का नाम दिया गया है न्यूट्रिशनल हिस्ट्री। ऑल आर सेम, राइट? फूड से ही तो न्यूट्रिशन आता है, तो फूड एंड एलर्जी कह सकते हो, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री भी कह सकते हो, एक ही बात है, फूड एंड एलर्जी और न्यूट्रिशनल हिस्ट्री। इसमें आपको क्या क्या करना है कि खाए हो दिने, राइट? सो फूड हैबिट आपको पूछना होगा। कई कई लोगों के फूड हैबिट से भी आपको पता चल जाएगा कि ओके दिस पर्सन में सफर फ्रॉम दिस डेफिशिएंसी बिकॉज उनका फूड हैबिट ऐसा ही है। ओके, फूड हैबिट एंड ऑल्सो द न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, मतलब जो खा रहा है उसके अंदर क्या, आप दाल खाते हो, कैसा दाल खाते हो, अच्छा सा दाल खाते हो या दाल जो खाते हो ऐसे पतला पानी की तरह होता है, तो दाल वो खाচ্ছে मानेই যে ও প্রপারলি নিউট্রিশন নিচ্ছে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। द टाइप ऑफ फूड ही इज टेकिंग, से राइस, व्हिच काइंड ऑफ राइस, प्रॉपर राइस, अमाउंट, ये सब आपको पूछना है। हाँ, अब लग रहा है कि बहुत कुछ है, उस वक्त जब पूछोगे 3-4 क्वेश्चन में आपको आ जाएंगे बिकॉज यू विल बी आल्सो एक्सपीरियंस्ड। आप एकदम पॉइंटेड क्वेश्चन पूछोगे, आपको आंसर उधर चल के आएगा। फूड हैबिट एंड एलर्जी तो ऑलरेडी जिज्ञेस करलाम, कोनो फूड एलर्जी আছে কিনা, फूड हैबिट, एलर्जी, ओके, एंड ऑल्सो बावेल एंड ब्लैडर हिस्ट्री। ओके, बावेल ब्लैडर हिस्ट्री वो आप जनरल एग्जामिनेशन में भी करोगे और इधर पे भी आप पूछ सकते हो। बावेल एंड ब्लैडर, हाउ इज देयर बावेल एंड ब्लैडर हैबिट्स। ओके, सो नेक्स्ट फूड एंड एलर्जी के बाद बाकी कौन सा रह गया, खाता देखे बोलो কি লিখেছো আগের দিন, কিছু লিখেছো? फूड एंड एलर्जिक हिस्ट्री के बाद आपका आएगा एडिक्शन हिस्ट्री, ठीक है? एडिक्शन हिस्ट्री, एडिक्शन हिस्ट्री मीन्स एनी काइंड ऑफ एडिक्शन।
any kind of thing which you aspire to do again and again, that is your addiction. Addiction may be of different types. Okay, addiction may be of different types. So addiction history, first line of addiction is your caffeine, tea, pan, which are not that much harmful, but still you have to take history. Second line of addiction is harmful. क्या क्या हो सकता है? सिगरेट्स मतलब स्मोकिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सब के बारे में आपको पूछना पड़ेगा। এখানে আরো কি কি হতে পারে? গুটখা और मतलब च्यूइंग, टोबैको, च्यूइंग प्रोडक्ट्स, टोबैको च्यूइंग प्रोडक्ट्स। ओके, राइट। नेक्स्ट are those which are actively drug mediated, like marijuana और गांजा, ठीक है, और हेरोइन, कोकेन। ओके, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, हेरोइन, कोकेन, मेटमॉर्फिन, ये सब आपका है। तो ये सब ड्रग एंड ऑल्सो द मोड, ओके কিছু করে কিনা, বাই হুইচ মোড হি টেক্স, ইনহেলেশন মোড, इंजेक्शन मोड। कई लोग इंजेक्टिव ड्रग लेते हैं, ब्राउन शुगर फुगाना है, इंजेक्शन। सो आईवी ड्रग एब्यूजर है क्या? नहीं, उसको आईवी ड्रग एब्यूजर कहते हैं। सो आईवी ड्रग कुछ लेते हैं क्या? नहीं, वो भी एडिक्शन है। तो ये सब आपका एडिक्शन का स्टेप्स हो गया। तो कौन से में वो है? मल्टीपल हो सकता है एक आदमी में, कुछ भी नहीं है ऐसा भी हो सकता है। सो यू हैव टू टेक दिस एडिक्शन हिस्ट्री व्हिच विल प्रोवाइड यू जनरल आइडिया। नाउ इन दिस केस marijuana, all of these two will people admit, okay, if you persuade a little bit, this thing will people admit, with pride, আমার সির্ফ চার কফি নেশা, চার কোনো নেশা নেই। this thing will people admit with a little bit of persuasion, আরে বলো না কিছু হবে না, আমি ওষুধ দেবো, জাজ করবো না, এরকম বলবে। this thing वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको घर वाले ही डिनाई करेंगे और वो भी डिनाई करेंगे, बिकॉज दिस थिंग इनवॉल्व्स योर देयर डिमाइज। কারণ ও ভাববে কি আমি বাইরে বললে আমাকে খারাপ ভাবে, বাট ইউ আর হিয়ার টু प्रोवाइड प्रेस्क्रिप्शन, नॉट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लास 12 में आपका हेडमास्टर दिए है, राइट? तो आपको काम वो नहीं करना है, आपको उसको एहसास जताना है। यू हैव टू मेक हिम और हर बिलीव कि देखो मेरा काम है बस ट्रीटमेंट करना, मैं अगर ये सब जानता हूँ तो मेरे लिए उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना ओके होगा। ओके, समटाइम्स इट्स वेरी एविडेंट बट दे आर डिनाइंग, लाइक एखाने आपका छेद मिलेगा, छेद मतलब थोड़ा कट्स एंड ब्रूसेस मिलेगा, वाई की गेस करछो? कोकेन, রাইট? স্নট করে নেয়। তো এই মুভি দেখো না তোমরা, নেক্সট এখনই এই বয়সে নিজেরা করছো না এক্সপেক্ট করবো, সো আই মুভি থেকেই দেখতে পাবে। ইনজেকশন, এটাও মুভিতে দেখবে। সো আইভি ড্রাগ যখন নেয় কি হয়, whenever they take IV drug, এই যে আমাদের এখানে যদি আমরা ভেনগুলোকে যে প্রমিনেন্ট করি, দিস ভেন লুকস ওকে, বাট দেয়ার ভেন উইল লুক ব্ল্যাকিশ, কালো হয়ে যায়। ওকে, অ্যান্ড অলসো কালো হয়ে যায় বিকজ অফ দ্য সাবস্টেন্সেস দ্যাট আর ফ্লোয়িং থ্রু দেয়ার ব্রেন, অ্যান্ড অলসো সেকেন্ডারিলি দ্য ওয়ালস উইল গেট মাচ থিকার। মানে এই যে আমি মাঝে মাঝে ব্লাড নিই, আই টেক ব্লাড ফ্রম ইউ হোয়েল your hematology test are performed, so देखबे এটা সুন্দর इजीली ঢুকে যায়। ओके, बट इन दोस पेशेंट्स आपका निडल ही नहीं घुसेगा, समटाइम्स द निडल जस्ट बाउंसेस बैक, लाइक ऐसे करके आप घुसाओगे ना वो स्लीप हो जाएगी। दैट मच हार्ड देयर वेसल वॉल, वास्कुलर वॉल बिकम्स, ঢুকবেই না, ও ঢুকতেই চাইবে না। ओके, सो मल्टीपल वेन्स you have to take into consideration if you are going to take his blood sample. So ऐसे आपको मिल जाएगी, आप देख रहे हो कि अरे भाई देखছি আমি, but he will not admit. Now what is the problem? If he is not admitting, then officially you cannot consider that in your mode of treatment. Okay, so आपको उसको घर वाले को कई बार वो एडमिट कर लेगा, लेकिन उसके घर वाले मानने नहीं चाहेंगे। ओके, तो घर वाले को अलग से करके उसको अलग करके आपको उसको काउंसिल करना है कि देखो कोई बात नहीं, तो आप बताओ फिर हम ट्रीटमेंट क्यों करेंगे। नाउ व्हाई आई एम giving importance to these things, injectable drugs and marijuana, cocaine वगैरह etc. These injectable drugs are very much responsible for one specific kind of diseases, যেটা হচ্ছে STD, sexually transmitted diseases or any kind of transmitted diseases. Okay, सोचो किसी का हेपेटाइटिस है, किसी का ऐसा कुछ है जो ब्लड बॉर्न डिजीज, ब्लड से वो जा सकता है। ऑल ऑफ दोस थिंग्स कैन बी शेयर्ड बाय नीडल शेयरिंग, नीडल शेयर करते हैं दिस पीपल। ओके, दे आर एक्चुअली लोअर मिडिल क्लास पीपल और हायर मिडिल क्लास पीपल, व्हाटएवर। ओके, हाई भी हो सकता है, बहुत ऊंचा कैटेगरी के लोग भी कर सकते हैं, नीचे कैटेगरी के लोग भी कर सकते हैं। जो भी करते हैं ऑफन यू सी दैट दे शेयर निडल्स, वो প্রত্যেকের জন্য अलग स्टेराइल निडल वो यूज नहीं करता, एक ही निडल में शेयर करता है। दैट मीन्स इफ आई हैव समथिंग
if someone is taking it from me, he will be also infected by the same thing. So if you are ready, and if you actually make the patient confess about these things, not only him or her, him কেন বারবার বলছি, because in girls these things are actually seen less, in boys seen more. এখন এগুলো দেখো, দ্য পেশেন্টস আর অ্যাকচুয়ালি কেউ এরকম হয় না যে জন্মে গেল বা ছোটবেলায় স্কুলে গিয়ে ইয়েস ড্রাগ করবো, এরকম তো কেউ করে না। Under certain situations, a person was there, a boy was there, whose father died at very young age. His mother is daily worker, লোকের বাড়ি কাজ করতে যায়, এবেলা যায় ওবেলা যায়, so he stays in his home, okay, no schooling, কারণ ওর পড়ানোর পয়সা নেই, কি করছে, he is keeping up with the adults in their পাড়া, the locality is itself very bad drug abuse locality, so ও বড়দের থেকে যা শিখছে ও সেটাই করছে। At 13 to 14 years he started taking IV drugs, at 19 he was diagnosed with STD. Now the problem is उसका तो लाइफ चला गया, but unknowingly he doesn't know na he is suffering from STD. So any person he is taking or sharing food with, ওদেরও চান্স থাকবে না। So you are not only saving him, trying to save him, you are also trying to stop the spreading. उसका एक छोटा 4 साल का भाई है शायद, तो उसके अंदर चला जाएगा ना, तो आपको समझना है उस बच्चे का कुछ कट हो गया, ये लड़का गया उसको हेल्प करने में, उसके वो ब्लड के थ्रू उसके बच्चे के अंदर चला जाएगा। हेपेटाइटिस ए एक लड़के का हुआ था, उसका घर में सारा लोगों को फैल गया। आई यूज्ड टू वर्क इन इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट, दैट्स व्हाई आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग्स, फर्स्ट हैंड में देख चुका हूँ। अनट्रीटेड है, पूरा फैमिली में फैल गया हेपेटाइटिस, ऐसा हो सकता है बिकॉज अनट्रीटेड। सो दिस यू हैव टू एसेस दिस थिंग्स। अगर आपको एसेस कर लिए तो नाउ इमीडिएटली यू हैव टू टेस्ट फॉर सेरोलॉजी। সেরোলজি মিন্স ট্রিপল সেরোলজি বলে, এইচআইভি, হেপাটাইটিস অ্যান্ড আরেকটা কি ট্রিপল সেরোলজিতে কি আছে, হেপাটাইটিসে দুটো, হেপাটাইটিস ए बी सी। तो नॉर्मली वी टेस्ट फॉर बी एंड सी। हेपेटाइटिस ए यूजुअली फूड बॉर्न डिजीज होता है, फूड से जाता है यूजुअली, और ब्लड থেকে ছড়ায় হচ্ছে হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি এন্ড योर এইচআইভি 1 and 2। তো যাই হোক, in those cases you are also trying to prevent from spreading, so you are not only saving him, you are saving multiple personnel, that's why this drug is necessary। and also ওর বন্ধুদেরকেও ডাকতে হবে, ওকে, হতে পারে ওর মধ্যে এখনো পজিটিভ, even if he comes negative for those states, all the person whom he used to take drug with, take this IV drugs, उनको सबको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर किसी को हो, आज इसको ट्रांसमिट नहीं हुआ कल हो जाएगी। so as a doctor you have to save the locality, not only 1% is your perspective। so आपको ये असेस करना है, लेकिन वो सब बाद में करोगे, बट यू नो नाउ नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। कितना छोटा सा आपका गलती से, या आप थोड़ा कैजुअल हो गया कि ठीक है मोर्चे मोरुक तो कोनो ব্যাপার না, আমি এটা দেখে নি, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो ट्राई टू ए लिटिल बिट मोर प्रोएक्टिव अबाउट इट, बिकॉज आपके हाथ में कई लोगों का डिपेंड करता है, कई लोगों को जो उधर पे नहीं फैला है आप रोक सकते हो। आप उनका गार्जियन को बुलाओ और बोलो कि शायद देखो ना अपना বাচ্চা এরকম করছে, প্লিজ কোতে মানা করবেন, নাহলে মরে যাবে। वो लोग पहले इनकार करेंगे कि नहीं हम तो नहीं करते, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वो जो भी करेगा चोरी डकैती करता है लेकिन ड्रग नहीं लेता है, बहुत कुछ बोलेंगे। आपको बस एक ही बात बोलना है, देखो देखो आँख अगर नहीं सुधरे तो 5 महीने के अंदर आपका बेटा मर जाएगा, ऐसे बोलना है, लिटरली मर जाएगा। ठीक, आप CD4 काउंट डिक्रीज हो जाएगा, मर जाएगा, तब जाके वो बोलेगा, तब जाके वो 2 दिन बाद आके आपको बोलेगा हाँ सर करे प्लीज बाँचिए नहीं, देन यू विल be assessing him। ठीक है, so you will be telling, you will have to tell the truth, not always you can get things from them being so sensible and all। आपको पहले उसको डराना भी है कभी कभी, because you have to get your answer to treat the locality। so ऐसे करके आपको addiction history is very important in these cases। এইগুলোর addiction অতটা নয়, এটা এটা after certain age or after, so duration भी पूछना है, कितना दिन से आप कर रहे हो, ये सब भी ड्यूरेशन पूछना है। ओके, ड्यूरेशन, तारपरे होच्छे इंटेंसिटी, ये सब इसमें भी आएगा कि स्मोकिंग कितना दिन में करते हो। कोई कहेगा कि सर हफ्ते में 4-5 कर लेते हैं, कोई कहेगा दिन में 10 करते हैं। तो आपको वो इंटेंसिटी के बेसिस पे आप समझ जाओगे कि ओके द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द डिजीज टू दिस पर्सन इज दिस मच। सो उसके लिए आप वैसे एडवाइस दोगे। सो एडिक्शन हिस्ट्री हो गया। देन एडिक्शन हिस्ट्री পরে আর কি বাকি আছে বলো? কেউ আগের দিন লিখেছিলে? ও সুভাষিস স্যার যা যা পয়েন্ট দিয়েছিল কে লিখেছিলে? এই কে লিখেছিলে? কেন? ओके, सो नेक्स्ट फाइनल लड़कियों के लिए एक एक्स्ट्रा है। नाउ ऑल ऑफ दीज आर जेंडर
न्यूट्रल, ये सब आपको सबको पूछना है. नाउ whenever a woman comes, there are some things different from women to men. মেয়েদের দু একটা জিনিস বেশি হয় যেটা ছেলেদের হয় না. ফার্স্ট অফ অল দ্যাট ইজ জেস্টেশন. জেস্টেশন মানে প্রেগনেন্সি. মেয়েরা প্রেগনেন্ট হয়, ছেলেরা হয় না. দ্যাটস ওয়াই इन केस ऑफ गर्ल्स ओ राइट. तो एक पॉइंट बाकी रहेगा, दैट इज फैमिली हिस्ट्री. देखो तुमने किंतु बोल लेना एनीवे. लेकिन ऐसा ही होगा आपको, आप अगर कंटिन्यूअसली हिस्ट्री लेते रहोगे नथिंग विल बी मिस्ड. आफ्टर इवन विद इन 15 to 20 सेकेंड्स एक बार आप सोचोगे तो आपको मिल जाएगी. हाँ, तो मिस नहीं होगी. तो या दैट्स व्हाई आई डोंट नीड नोट्स टू टेल यू दिस, बिकज फ्रॉम फाइनल ইয়ার আমরা অনেকবারই করেছি, আমরা পাস করেছি. তো ফ্যামিলি হিস্ট্রি, আর তাছাড়া আমরা যখন পরে ডক্টরি করি আমরা এইভাবেই হিস্ট্রি নিই, তো এগুলো মিস হবে না. ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে কি জিজ্ঞেস করবে? স্পাউস, ফাদার, মাদার সব এগুলো জিজ্ঞেস করবে, চিলড্রেন এগুলো জিজ্ঞেস করবে. দেন ইউ উইল বি আস্কিং ইফ এনি ডিজিজেস আর প্রেজেন্ট ইন দেম. ওকে, স্পেসিফিক্যালি ইন ফাদার অ্যান্ড মাদার ইউ হ্যাভ টু আস্ক, ওর বাবা আর মায়ের কোনো ডিজিজ ছিল কিনা, কনজেনিটাল ডিজিজ ছিল কিনা, ইফ এনি কনজেনিটাল ডিজিজ ওয়াজ প্রেজেন্ট, ইফ এনি কোমরবিডিটিস ওয়াজ প্রেজেন্ট, বিকজ ইউ নো হাইপারটেনশন তার সাথে হচ্ছে ডায়াবেটিস, দে ক্যান বি দে ক্যান বি ট্রান্সমিটেড ফ্রম মম অ্যান্ড ফাদার টু দেয়ার চিলড্রেন. তো মা বাবার থেকে এটা হতে পারে. যদি এটা ফ্যামিলিয়াল হয় দেন দে উইল বি গেটিং. সো তোমাকে এটা বে করতে হবে. or any other diseases which are present in their family. A lot of X-linked diseases, a lot of diseases can transmit from their family members to them, okay, without them knowing even. Okay, তাছাড়া তুমি বুঝতে পারবে যে ওকে उसका पापा का भी ऐसा था, उसका अम्मी का भी डायबिटीज है, तो this person have the tendency, so তুমি ওকে অলরেডি ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ করতে বলবে. ওকে, তো এইগুলো তোমার ক্ষেত্রে আসবে, বিকজ নট অনলি বাই ট্রিটিং, ইউ উইল বি ট্রাইং টু প্রিভেন্ট সামথিং অলসো. ওকে, অ্যাডভাইস দেওয়ার সময়. सो एनी डिजीजेस प्रेजेंट. धरो घर में उसका कोई पहले ट्यूबरकुलोसिस का दवा लिया था, दैट मीन्स एवरीवन इन दिस हाउस होल्ड हैज ए टेंडेंसी टू एक्वायर ट्यूबरकुलोसिस. কেন? बिकॉज व्हेन ही वाज इन्फेक्टेड, ওরা তো অত কিছু মেনে চলেনি, এটা পসিবল না, ওরা তো জানে না, দে আর নট ডক্টরস, সো ওরা অত মেনে চলেনি, দে মেট एंड टॉक्ड विथ हिम, दे स्टेड विथ हिम फ्रीली. सो होते पारे उसका डिजीज कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसका फैमिली में किसी का अंदर घुस गया है, अभी तक सिम्टम नहीं देखा, कुछ दिन बाद शायद दिखेगा. तो यू कैन ऑल्सो प्रिवेंट ए लॉट ऑफ थिंग्स. सो एनी डिजीज प्रेजेंट और इन पास्ट टू द फैमिली मेंबर्स. किसी का सिकल सेल एनीमिया है, किसी का थैलासेमिया है, किसी का फैमिली में किसी का ऐसा है, किसी का कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, किसी का पेसमेकर है, किसी का बार बार बाईपास, 2 बार बाईपास हो गया उसका अम्मी का, पापा का. तो ये सब आपको नोट करना है फैमिली हिस्ट्री में. फैमिली हिस्ट्री एक्चुअली फैमिली एंड फैमिली डिजीज हिस्ट्री ऐसे करके लिखने से आपको पूरा अंदाजा मिलेगा कि क्या क्या आपको पूछना है. फैमिली एंड फैमिली. तो एस्मा अम्मी के है, पापा के है, कुछ भी अम्मी पापा सिग्निफिकेंट डिजीज से सफर करते हैं, थायराइड है क्या नहीं, ओके, तो थायराइड के लिए दवाई लेते हैं क्या नहीं, कुछ भी, एनी डिजीज प्रेजेंट और पास्ट टू फैमिली मेंबर्स यू शुड आस्क. नाउ आफ्टर दैट योर जनरल हिस्ट्री टेकिंग इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. हिस्ट्री टेकिंग इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. ओनली वन पॉइंट लेफ्ट, दैट इज योर वुमेन स्पेशल. वुमेन स्पेशल मीन्स 2 स्पेशल पॉइंट्स. फर्स्ट इज योर जेस्टेशन हिस्ट्री. ओके, जेस्टेशन हिस्ट्री और सिंपल देयर प्रेगनेंसी हिस्ट्री भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो. तो उसमें आपको एक वुमेन को जेस्टेशनल हिस्ट्री, ये वुमेन महिला होगा तो उसके लिए आपको, बिकॉज इफ ही इज मेल दैट मच हिस्ट्री इज एनफ टू नो द फैमिली मेंबर्स, बट इफ शी इज वुमेन आपको ये सब करना होगा. क्या क्या पूछना होगा कि हाउ मेनी बेबीज शी हैड और हैज. ओके, उसके अंदर कितना डेड है, कितना अलाइव है, how many were dead after born, okay, कैसे हुआ, and how many were dead before dead माने माँ का कोख में जो मर गया. 2 प्रोसेस से मर सकता है. 1 नेचुरल मतलब नॉट नेचुरल, बाय डिजीज. तो थर्ड पॉइंट होगा आपका डेथ इन वोम्ब बाय डिजीजेस. कुछ भी हो सकता है. ड्यूरिंग डिलीवरी प्रॉब्लम, डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम ड्यूरिंग डिलीवरी, फाइनली खुद से गिराया, एबॉर्शन हिस्ट्री, राइट. एंड ऑल्सो स्पेसिफिक एक्स्ट्रा पिल्स, कोई पिल कंटिन्यू लेते. सो इफ यू हैव मिस्ड
that pill history in medicinal history, right? Here you will definitely be getting it. Medicinal history তে ideally পিলটা নেওয়া উচিত, বাট অনেকে বলে না বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য সেন্স টু মেক ইউ से. So reproductive age woman आपको पूछना है कि pills लेते हैं क्या नहीं. Any kind of pills. Pills মানে এগুলো কি pills? Anti pregnancy pills. Okay? বা pregnancy pills. I pill বলে পাওয়া যায়. ওইরকম pills কিছু নাই কিনা, progesterone, estrogen pills, estrogen pills এগুলো নাই কিনা. Any pills taking history. So you'll be taking dead baby history. कितना मर गया, कितना बचा है. जो मर गया है वो उम्र में अगर मरा है तो डिजीज से मरा है कोई, या डिलीवरी के ड्यूरिंग प्रॉब्लम हुआ था, या खुद से अबॉर्ट किए हैं. ये नंबर सारा आपको नोट करना है. सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ द वुमन इज एंड हाउ हर यूट्रस, हर बॉडी इज, हाउ मच हर बॉडी इज कैपेबल टू टॉलरेट दिस थिंग्स. ये आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगी. एंड ऑल्सो इतना बार कोई बार बार लॉन्ग टाइम पिल्स में है या कोई बार बार अबॉर्ट किया है, तो उसके लिए आपको एक दिमाग में ध्यान में रख के आप कुछ कर सकोगे. ओके, सो पिल्स टेकिंग हिस्ट्री. सो ये होता है वुमन का जेस्टेशनल हिस्ट्री. ये वुमन के लिए आपको एक्स्ट्रा करके लेना पड़ेगा बिकॉज मेन डोंट हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, उसका डिलीवरी सिंस दे डोंट गेट प्रेग्नेंट, उसको पिल्स भी नहीं लेना पड़ता है, ये सब भी ले लेना पड़ता है. सो दिस थिंग्स यू शुड आस्क अ वुमन. एंड द सेकंड पॉइंट यू शुड आस्क अ वुमन, যেটা মেয়েদের হয় ছেলেদের হয় না, কি বলো তো? menstruation. So menstrual history you will have to also take. So what is your menstrual history? जिज्ञेस करबे कैसे पूछना है menstrual history में. So menstrual history में आपको पूछना है कि হচ্ছে periods. You know, I am not talking about general that period term. Period means if it's regular और irregular. मतलब किसी का सोचो कि 26, 26, 26, 27 ऐसे करके है 26, तो you can say that this is almost normal. Okay, this is regular. Then second is irregular means किसी का कभी 20, कभी 25, कभी 30, फिर 22 ऐसे करके हो सकता है. कभी गायनोकोलॉजिकल डिजीज से ऐसा हो सकता है. तो पीरियड्स, इफ द पीरियड इज रेगुलर और इरेगुलर. सेकंड इज ব্লিডিং ডেজ. হাউ মেনি ব্লিডিং ডেজ আর দেয়ার? ইউজুয়ালি কত থাকে? 4 থেকে 5 দিন, রাইট? 3 to 4 or 3 to 5 days তুমি লিখতে পারো. বাট whenever this bleeding days is much higher or much lower, there may be some problem যে কারণে অসুবিধা হচ্ছে. তো days of bleeding. Finally periods তো রেগুলার ইরেগুলার হলো. the duration of menstruation, duration of this total period. duration ideally normally আমাদের মোটামুটি around 4 weeks is said to be normal. ধরো কারোর 15 दिन অন্তর duration, 15 days बाद उसका ऐसे ब्लीडिंग हो रहा है, that means his heart cycle is only for 15 days. that is not normal. किसी का 40 दिन हो रहा है. ओके, तो वो रेगुलर है, मतलब after 40 days, after 40 days, after 40 days. So even if the period is regular, doesn't mean the menstrual history is okay if the duration is too much or too less. duration भी आपको पूछना पड़ेगा. Now you will be getting into the period itself. That means the menstruation itself. কি জিজ্ঞেস করবে? Okay, so during menstruation you will ask कि during menstruation ये जो bleeding हो रहा है, okay, 3 to 5 days normal हो गया. if the bleeding is normal, so bleeding का nature आपको जानना है. क्या nature जानना है? if the bleeding is too much, too less or normal. Okay, too much bleeding may have other causes. Second, any other discharge except blood. normally ওখানে blood ही বের হয়. so any other discharge like whitish discharge हो सकता है. whitish discharge अगर हो सकता है तो very common disease in women, candidiasis is very common in women. okay, and also on this note UTI is also very common in women. UTI means urinary tract infection. Most of the women suffer from UTI at least multiple times in their life. and also UTI हिस्ट्री नहीं, हमारा आरेक्टा जिनिस बॉलर আছে সেটা আমি একটু পরে বলছি. anyhow वो जो मैं फीवर के बारे में बोला था ना, so fever associated symptoms কোনটা বলো? तो fever with shivering only is noticed in 3 diseases. okay, so the associated
एसोसिएटेड थिंग्स विद चीफ कंप्लेंट जिसका मैं बात कर रहा था, तो उसके लिए आपको अगर फीवर के साथ शिवरिंग हुए तो only 3 things is necessary for that, only 3, no other disease will show this pattern. কি একটা হচ্ছে ইউটিআই, অ্যানাদার এই বলো জ্বরের সাথে কাঁপুনি কোন রোগে আসে, ম্যালেরিয়া, and the another is if there is pus inside your body, pus বাংলায় এটাকে বলে পুঁজ, লাইক কোথাও পুঁজ জমে গেছে, pus, ওকে, এনি পাস কালেকশন ইনসাইড ইউর বডি, দেন পাস কালেকশন থেকে কি হবে, ইনফেকশন হবে, সেই ইনফেকশন থেকে জ্বর আসবে অ্যান্ড ইউর বডি উইল শিভার। সো এটা জাস্ট আমাদের ফাইনাল ইয়ারে বলে, আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে বলে রাখলাম সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কি অ্যাসোসিয়েটেড সিমটম জিজ্ঞেস করার ইম্পর্টেন্স কতটা আছে, রাইট? সো ফিভার উইথ শিভারিং এই তিনটেই হবে। তো যাই হোক, ওমেনদের ক্ষেত্রে ইউটিআই এর ক্ষেত্রে তুমি টিপিক্যালি এটা দেখতে পারবে। সো কিছু নেই, ইউটিআই, ম্যালেরিয়া আর পাস কালেকশন, এটা অত ইম্পর্টেন্ট লেখা দরকার নেই, তোমাদের এত জিজ্ঞেস করবেও না, বাট জেনে রাখতে পারো। And any other kind of discharge, so candidiasis and UTI, these two are most common diseases seen in women in India, okay? So any other discharge like specifically জিজ্ঞেস করতে হবে whitish কোনো ডিসচার্জ হয় কিনা, okay? Any other discharge specifically whitish discharge হচ্ছে কিনা। Next, clot formation, clot থাকে ওখানে but very little, normally very little to no clots are present, but if there is too much clot, if there is too much clot or normal amount of clots, ये आपको पूछना पड़ेगा। एंड ऑल्सो আরেকটা জিনিস পিরিয়ডের সময় মেয়েদের হয় কি হয়, অ্যাবডোমিনাল পেন, ক্র্যাম্পস, প্রচুর ক্র্যাম্পস আছে। সো ক্র্যাম্পস, ओके, क्रैम्प्स एंड एब्डोमिनल पेन। सो ये जो क्रैम्प्स एंड एब्डोमिनल पेन ये कुछ हद तक नॉर्मल है, जो लड़की है उनको हर महीना आता है तो उनको पता है कि इतना तो मेरा नॉर्मल है, दे विल सफर बट दे विल से कि ओके ठीक है ये नॉर्मल है, तो दे विल नो व्हेन द क्रैम्प्स एंड एब्डोमिनल पेन इज टू मच, maybe that's because other seeds or other something is present, okay? So PCOD हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए शायद उसका क्रैम्प ज्यादा हो रहा है और एब्डोमिनल पेन ज्यादा हो रहा है। आपको वो देखना होगा कि क्रैम्प्स एंड एब्डोमिनल पेन इंटेंसिटी, एक्चुअली कहेंगे इसको इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ क्रैम्प्स एंड और एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग पिरियड। तो এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমাকে এর সাথেও জিজ্ঞেস করতে হবে যখন তুমি মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি নিচ্ছ। তো এটা इतना कुछ पूछोगे only then the total menstrual history वो आपको देखने को मिलेगा। नाउ इन गायनी यू विल अंडरस्टैंड कैसे ये लिखते हैं। नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं कि एक साथ में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक 3 to 5/28 এরকম করে আমরা লিখি। ऐसा मीन्स दिस इज योर ब्लीडिंग डेज, दिस इज योर टोटल डेज, ओके? ऐसे करके आपका लिखते हैं। गायनी में वो अच्छे से है, उधर पे जब जेस्टेशनल हिस्ट्री लिखोगे तो जी है इक्वल टू एल टी ऐसे करके है, जो लिविंग बच्चा, जो बच्चा मर गया, वो सब गायनी में आपको अच्छे से पता चलेगा वो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। सो लेकिन फर्स्ट ईयर में इतना पहचानो नो कि ये सब आपको पूछना है, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स हैपन टू वुमेन, सो यू हैव टू आस्क अबाउट इफ दे आर यू नो एक्सपीरियंसिंग इट एट नॉर्मल अमाउंट और मोर और लेस अमाउंट, जो भी हो आपका प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ आपका हिस्ट्री टेकिंग। अभी एग्जामिनेशन शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ बातचीत कर रहे थे, बातचीत हो गई, हिस्ट्री टेकिंग हो गई। नाउ यू विल बी एग्जामिनिंग जनरल एग्जामिनेशंस। जनरल एग्जामिनेशन मीन्स दे आर नॉट सिस्टम स्पेसिफिक, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी चीफ कंप्लेंट विल have to undergo these examinations by you. Ideally I say कि there are 15 to 20 points, বলো তো কি, बट অনেক বইতে 6 থেকে 7টা আছে। when I will write, देखो ऑलरेडी जब तुम लोग आए थे इधर पे लिखा हुआ था, ओके, एक साथ 20 तो 17-18 तो था ही। तो आई विल बी टेलिंग यू क्या है ये जनरल एग्जामिनेशन। नाउ व्हेन जनरल एग्जामिनेशन यू डू, सम ऑफन वी एक्चुअली टेक वाइटल्स अंडर जनरल एग्जामिनेशन, राइट? सो वो मैं बाद में थोड़ा बताऊंगा, पहले मेन पॉइंट्स ऑफ जनरल एग्जामिनेशन आपको बताते हैं क्या क्या है, व्हाट यू विल हैव टू चेक। পরপর বলো কেউ পড়েছে কিনা। প্যালার, ইকটেরাস, সাইনোসিস, ক্লাবিং, সোয়েলিং और কি আছে বলো? सोइलिंग, उसके बाद कोई रेडनेस, कोई पेन किसी जगह है क्या नहीं, सोइलिंग के अंदर, और लिम्फ नोड्स। देन योर बाउल ब्लैडर हैबिट्स,
बाउल ब्लैडर हैबिट्स, ये सब आपको पूछना है। उसके साथ आपका वाइटल्स के अंदर वो लोग चलाएगा, बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर एंड SpO2, ये सारा आपका जनरल एग्जामिनेशन के अंदर चलाएगा। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय पैलर? पैलर इज एनीमिया, एनीमिया। सो एनीमिया टिपिकल पैलर आप कैसे देखोगे? आपको ये सब पल्स स्पेस में चेक करना है, टंग में चेक करना है, हाथ और पैर का डॉर्सम में चेक करना है, सॉरी प्लांटर सरफेस में चेक करना है, तो इधर पे चेक करना है, ठीक है? देखोगे ऐसे करके, देखो এই যে আমি ছেড়ে দিচ্ছি হাতটা করে, ইটস কামিং ব্যাক রেগুলারলি, ইটস নট কিপিং হোয়াইট, दैट मीन्स आई हैव एडिक्वेट ब्लड, सो दैट इज नॉट पैलर। आपको आंख में भी चेक करना है, कॉर्निया एंड कॉन्जंक्टिवा में, कॉन्जंक्टिवा में आपको चेक कर सकते हो, ओके, अपर बल्बर कॉन्जंक्टिवा एंड लोअर पैल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा। कैसे चेक करोगे ये सब हम अगला दिन में पूरा एक के बाद एक दिखाएंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे पैलर। और आज टाइम बाकी रहता है तो थोड़ा इधर दिखा देंगे। इक्टेरस, इक्टेरस मीन्स व्हाट? येलोइश डिस्कलरेशन, इक्टेरस, पैलर के बाद इक्टेरस, ये साइनोसिस है। इक्टेरस इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन योर स्क्लेरा, व्हाइट एरिया में, स्क्लेरा में आपका हाथ पैर का इधर दिख जाएगा, ये सब जगह पे दिख जाएगा, बॉडी का ट्रंक का साइड ऑफ द ट्रंक में दिख सकता है। ओके, सो दिस इज योर इक्टेरस मीन्स येलोइश डिस्कलरेशन। उसको हम अच्छे लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस या जॉन्डिस। तो आइडियली हेपेटाइटिस इज ए कॉज, राइट? येलोइश डिस्कलरेशन होता है हेपेटाइटिस की वजह से। सो एंड कैन हैव बिलीरुबिनेर জন্য, राइट? द एक्युमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन ऐसे करके होता है, वो बाद में आप डिटेल में पढ़ोगे। साइनोसिस, साइनोसिस मींस ब्लूइश डिस्कलरेशन, यूजुअली सीन इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स और दैट काइंड ऑफ एरियाज लाइक टिप ऑफ टंग, তারপরে হচ্ছে অন দা ইনার সাইড অফ ইয়োর লিপস, ইনার সাইড অফ ইয়োর লিপস, তারপরে হচ্ছে টো, আঙ্গুলের একদম টপে নখে, ओके, इन योर नेल्स आप देख सकते हो। ऐसे ब्लूइश डिस्कलरेशन इज कॉल्ड सायानोसिस। सायान माने ब्लू, सायान একটা ব্লু এর কালার হয় দেখবে। নেক্সট ক্লাবিং, ক্লাবিং ইজ योर distal pulps, okay, will get significantly thicker and there is some angle। বলো অ্যাঙ্গেলটার নাম তোমাদের বলেছিল, পরের দিন দেখে আসবে, এটা তোমাদের জন্য টাস্ক। এই বলো কি? হ্যাঁ ওই তো, ওটাকে ডায়মন্ড, ওই ডায়মন্ডটাকে কি বলে? একটা ভালো টার্ম আছে, পরদিন দেখে আসবে। सो दैट डायमंड एक्चुअली विल बी फॉर्म, ऐसे करके एक डायमंड आप अगर ऐसे देखोगे तो अंदर देख सकते हो, ओके, राइट? तो वो क्लबिंग आपका डिनोट करेगा। ক্লাবিং के बारे में आपको पूछना है इफ इट्स অ্যাকোয়ার্ড और কনজেনিটাল। হতে পারে অনেকের বাবা মা থেকে আসে, অনেকে স্মোকিং এর জন্য স্পেসিফিক্যালি ক্লাবিং খুব হয়, তো आपको অ্যাসেস करना है। वेरी गुड। देन स्वेलिंग, स्वेलिंग, स्वेलिंग अब काफी तरह के हो सकते हैं, ओके, इफ यू अंडरस्टैंड, स्वेलिंग काफी लोगों के लिए हो सकता है। whenever there is some swelling it can be because of multiple reasons। ধরো কারোর একটা এখানে ফুলে গেছে, swelling, क्या क्या वजह हो सकता है? सबसे पहला क्या आपको दिमाग में आता है? इंजुरी, ट्रॉमा, वेरी गुड, फर्स्ट ट्रॉमा, क्यों पड़े गए फुले गए, ट्रॉमा, सो दैट इज इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी कॉज ट्रॉमा। सेकेंडरीली स्वेलिंग अगर सॉलिड हो, सॉलिड स्वेलिंग हो सकता है। सॉलिड स्वेलिंग में क्या क्या हो सकता है? ग्रोथ, ओके, सो एक्स्ट्रा किसी जगह ग्रोथ हो गया है, हाइपरप्लासिया कहते हैं उसको, आप टाइम पार्ट में पढ़ोगे, ग्रोथ हो गया किसी एक्स्ट्रा। और अब एक ग्रोथ किस किस चीज का हो सकता है? लिम्फ नोड के लिए हो सकता है, लिम्फ नोडल, lymph nodal swelling। So if your lymph node is significantly swelled, you can see or you can feel it, but even if you get the swelling not to be lymph nodal origin, you have to palpate all the lymph nodes अलग से, right? In axillary area, in cervical area, all of the lymph nodes वो आपको अलग से ऐसे palpate करना पड़ेगा, okay? तो this के लिए आपको lymph nodal swelling देखना जरूरी है। If it's palpable, very good, otherwise हो सकता है कि उतना बड़ा नहीं हुआ है जितना आपको नजर में आए, तो फिर आपको हाथ से भी चेक करना पड़ेगा। दैट्स वाई देखो এখানে লিম্ফ নোড আলাদা করে লেখা আছে। इफ द स्वेलिंग इज लिम्फ नोडल ऑफ ओरिजिन देन वेरी गुड, आपको एक तो मिल ही गया, लेकिन दैट डजंट मीन कि यू विल नॉट चेक द अदर लिम्फ नोडल एरियाज, ऑल द लिम्फ नोडल एरियाज विल बी चेक्ड। আরেকটা কি কারণে হতে পারে বলো? ফ্লুইড ফিল্ড হতে পারে, ফ্লুইড। সো জেনারেলাইজড ফ্লুইড ফিল্ড সোয়েলিং কে আমরা বলি ইডিমা, জেনারেলাইজড ইডিমা, ওকে।
तो इडिमा इसके अंदर आता है, इसलिए मैंने इधर पे इडिमा अलग से नहीं लिखा, इडिमा इधर पे लिख दोगे तो एक्स्ट्रा और पॉइंट आ जाएगा। ओके, बोलने के वक्त ये सब बोलना है, अब जब पूछेंगे सर अगर ऐसे पूछे तो तब आप एक्सप्लेन करना। सो इसके अंदर एडिमा भी आएगा, मतलब फ्लूइड फील्ड स्वेलिंग, फ्लूइड फील्ड स्वेलिंग। एंड और भी एक है, আরেকটা কি কারণে সোয়েলিং হতে পারে বলো? হার্নিয়েশন, হার্নিয়া, এনি হার্নিয়া, ওকে। অ্যাবডোমিনাল, এখানে ইনগুইনাল রিজন, ইনগুইনাল হার্নিয়া হতে পারে, আম্বিলিকাল, এখানে আম্বিলিকাল হার্নিয়া হতে পারে, একটা সোয়েলিং এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ। সো হার্নিয়াল সোয়েলিং, এগুলো মুখস্থ করার কিছু না, ইউ ডোন্ট নিড টু মাগ ইট আপ, apply your common sense and you will get all these things. So these things I don't consider these as difficult. अब अगर रटना चाहते हो तो it will be difficult, लेकिन 4-5 पॉइंट अब याद रख दो तो बाकी आपको याद रख करना नहीं पड़ेगा। आपको एक अब हिसाब करो ना कैसे कैसे आपको ऐसे यू नो सूझ सकता है जगह, आपको ऐसे मिल जाएगी। ट्रॉमा, एनी काइंड ऑफ ग्रोथ, हाइपरप्लेसिया ऑफ समथिंग, लिम्फ नोडल ऑरिजिन, लिम्फ नोडल ऑरिजिन स्वेलिंग, एडिमा मतलब फ्लूइड फील्ड स्वेलिंग एंड हर्नियल स्वेलिंग और हर्निएशन, हर्निएशन भी कई जगह टर्म यूज होता है। सो हर्निएशन और हर्नियल स्वेलिंग, तो स्वेलिंग के इतना कुछ हो गया, ये अगर आप उधर रख दोगे तो और भी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट रेडनेस, किसी जगह आप आंखों से देख सकते हो कि ये जगह कहीं लाल हो गया है, राइट। सो ये रेडनेस, उसके साथ एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो, डीपिगमेंटेशन, डीपिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन। आप डी नहीं ऐड करो, किसी जगह व्हाइटिश हो गया है, किसी जगह ब्लैकिश हो गया है, किसी जगह स्पेसिफिक कुछ कलर दिख रहा है, डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम के बेसिस पे हो सकता है, और भी कुछ ही प्रॉब्लम के बेसिस पे हो सकता है। से एनी पिगमेंटेशन और डीपिगमेंटेशन ऑफ योर स्किन और डर्माटोम्स, दैट इज ऑल्सो यू कैन नोटिस। तो ये रेडनेस आपको उधर मिल जाएगी। ऑफन स्वेलिंग्स, ऑफन ट्रॉमा रिलेटेड स्वेलिंग्स विल बी एसोसिएटेड विथ रेडनेस एंड पेन, right? Edemas can also consider painful, considered sometimes considered painful. So हो सकता है आप किसी जगह चेक कर रहे हो, अचानक वो बोला that's his natural reaction. So वो आपको complain नहीं किया, but you can understand कि इधर पे कुछ दिक्कत है। So then you will ask कि अच्छा की होचे এখানে তুমি এরকম বললে কেন, বা वो নিজেই बोल, आपको पूछना है कि किसी ऐसी जगह है जिधर पे constant pain होता है, किसी जगह पे टच होने से पेन होता है, या दर्द ऐसे generally रहता है। Some pains are activated only by touching the local area. Some pains are present irrespective of it generally. Like move करने से ही थोड़ा दर्द हो रहा है, किसी जगह टच करने से फिर दर्द हो रहा है, आपको एसोसिएट करना होगा पेन है क्या नहीं, और अगर है तो किस टाइप का है, जनरलाइज्ड पेन है या आपका ओनली लोकली आप टच करोगे तब पेन हो रहा है। सो रेडनेस, पेन, रेडनेस के साथ आपका एक पॉइंट, any kind of pigmentation or depigmentation of your skin colors, okay, and also the আরো আছে বলো structure, structure of skin, স্কিনের উপরে আমরা পিগমেন্টেশন ডিপিগমেন্টেশন ছাড়াও কিছু স্পেসিফিক স্ট্রাকচার দেখতে পারি। সেই স্ট্রাকচারস হচ্ছে গিয়ে আমার কি কি হতে পারে, abnormal pulses, abnormal pulsation, pulsation, সো অ্যাবনর্মাল পালসেশনস কি কি হতে পারে, ক্যারোটিড অ্যাবনর্মাল, জুগুলার হতে পারে, ওখানে ডান্সিং জুগুলার, সরি ডান্সিং ক্যারোটিড, তারপর জুগুলার ভেনাস ওখানেও হতে পারে। তারপরে এখানে আমার অ্যাবডোমেনে व्हेन यू विल स्टडी कैपोट मेडिसी, ये सब होता है। तो अम्बिलिकल रीजन में भी ऐसे एबनॉर्मल पल्सेशंस मिल सकता है, व्हिच इज एक्चुअली नॉट नॉर्मल, okay, you are having because you are having some under related problems, that's why you are having that abnormal pulsations। तो वहाँ बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी कि ऐसा जगह ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा एबनॉर्मल पल्सेशन। और स्ट्रक्चर के बारे में और भी मैंने कहा, क्योंकि एबनॉर्मल पल्सेशन एक अलग से पॉइंट कर दो। फिर आपको और भी चीज देखने हैं जो है गेट, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ तो पोस्चर। सोचो मैं ऐसे चल के आ रहा हूँ, कोई पेशेंट ऐसे आएगा, दैट मीन्स उसका कुछ दिक्कत है, ओके। कोई पेशेंट, ये तो हो गया गेट, चलने का स्टाइल। किसी पेशेंट पोस्चर, स्पेसिफिक पोस्चर से आ सकता है, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, तो स्कोलियोसिस, काइफोसिस, ओके। कमर पे कुछ दर्द है, कुछ टूटा हुआ है, तो वो ऐसे करके आएगा, ओके। एंड गेट के बारे में आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, वाइडलिंग गेट, पैडलिंग गेट, ओके, स्वेइंग गेट, पार्किंसनिज्म में एक स्पेसिफिक पोस्चर होता है, ये सब आप अलग से बाद में सीएनएस में तो पढ़ोगे ही, बाद में भी पढ़ोगे, लेकिन फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि गेट एंड पोस्चर आर आल्सो इंप्लिकेटिव ऑफ व्हाट मे बी द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। हो सकता है उसका करंट प्रॉब्लम नहीं हो,
लेकिन हो सकता है যে ওর পায়ে কোনো প্রবলেম হয়েছে তাই খুঁড়িয়ে আসছে বাট কারেন্টলি এসছে ফিভার নিয়ে বাট অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান ইউ হ্যাভ টু নোট দ্যাট কারণ এটা তোমার হিস্ট্রিতে লিখতে হবে যে আচ্ছা এটা খোঁড়াচ্ছে কেন ওটাও তো একটা অ্যাবনর্মাল ব্যাপার व्हाई इज ही लिंपिंग राइट सो गेट पोस्चर गेट में बहुत कुछ होता है लिंपिंग हो सकता है वाडलिंग गेट हो सकता है वो अलग से आप पढ़ोगे गेट पोस्चर एंड ऑल्सो जनरल बिहेवियर हाउ इज ही बिहेविंग তোমার কোশ্চেনের উত্তর ঠিকঠাক দিচ্ছে কিনা इफ ही कैन अंडरस्टैंड एंड इफ इज कोऑपरेटिव तो इसका जनरल बिहेवियर भी आपको देखना पड़ेगा ओके ये आप जब बातचीत करोगे ये सब टेस्ट करोगे आपको मिल जाए समझ में आ जाएगी इफ द पेशेंट इज अलर्ट इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस और इफ द पेशेंट इज कोऑपरेटिव ओके ये समझ में आ रहा है क्या नहीं उसका एप्रिहेंशन कैसा है उसका सेंस ऑफ टाइम सेंस ऑफ वक्त और सेंस ऑफ जगह कैसा है तो ये सब आपको सीएनएस में अलग से देखना पड़ेगा सीएनएस का सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में आपको दिखना ही पड़ेगा फॉर नाउ यू कैन ऑल्सो नोटिस बिकॉज एक पर्सन अगर आपके सामने आएगा ये सब आप ना जाने ही नोटिस करोगे ओके अनजाने में नोटिस कर लोगे बट these things when you are documenting it comes under your history if you are noticing something different why won't you document it may be have significant effect on your disease finding तो आपको लिखना है देखो कितना हो गया बहुत कुछ हो गया सो ऐसे करके आपको देखना है गेट पोस्चर बिहेवियर एनी abnormal pulsation over your skin any pigmentation or color change of your skin डीपिगमेंटेशन वो इसी के कलर चेंज कलर ओवर स्किन ऐसे लिख सकते हो इडिमा पैलर इक्टेरा साइनोसिस क्लबिंग swelling ट्रॉमल swelling any kind of ingrown growth lymph nodal swelling इडिमा फ्लूइड फील्ड swelling और हाइड्रेशन हो सकता है रेडनेस हो सकता है वो आपका पिगमेंटेशन के अंदर ही आ गया कलरिंग के अंदर ही आ गया पेन आपका हो सकता है लिम्फ नोड्स आपका अलग से पूरा चेक करना पड़ेगा एंड ऑल्सो बावेल ब्लडर हैबिट्स आपको पूछना पड़ेगा हो सकता है कई पेशेंट को अगर आप आधा घंटे से हिस्ट्री ले रहे हो ओके आउटडोर में इतना वक्त नहीं होता है इंडोर पेशेंट में आप अगर आधा घंटे में हिस्ट्री ले रहे हो देन आप हो सकता है कि उसके बीच में उसको 2 बार यूरिनेट करने का अर्ज आ जाए मोस्ट प्रॉब्ली ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज देखिए डायबिटीज मेलेटर पेशेंटদের यूरिनेशনের फ्रीक्वेंसी অনেক বেশি হয় तो आपको अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी उसको किडनी डिसऑर्डर भी हो सकता है ओके तो कुछ भी हो सकता है आपको ये सब हिस्ट्री लेना है तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन एक के बाद आप जब करोगे तो आपको ऐसे कोई फॉर्मेट नहीं लगेंगे एक के बाद आपका ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा काफ़ी करने के बाद इसके लिए टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं तो दिस कम्स अंडर योर जनरल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग ना बेस्ड अपन दिस इतना कुछ आप देख लिए हो इसके बाद आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि ओके द प्रॉब्लम मे बी इन दिस सिस्टम क्योंकि इतना कुछ पूछने के बाद कुछ तो आइडिया आपको मिलेगा ऑन दैट एक्सपीरियंस नाउ यू विल बी मूविंग इनटू योर सिस्टमिक एग्जामिनेशन गिविंग इंपॉर्टेंस टू 1 or 2 स्पेसिफिक सिस्टम मोर एंड द अदर सिस्टम लेस ओके तो এই হচ্ছে তোমার হিস্ট্রি টেকিং এন্ড জেনারেল এক্সামিনেশন কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো সো নেক্সট ডে when we will be revising this thing every person আমি গ্রুপ করে দেব our BP machine actually has been new BP machines have been bought so yeah ওখানে আমরা যখন হিস্ট্রি নেব আমরা অলরেডি বিপিটা তখনই মেজার করতে বলবো